کو بتائیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 17 اضلاع میں پولنگ 9 جون 2022 کو ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس سے قبل 29 مئی کو پولنگ ہونا تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 17 اضلاع میں پولنگ 9 جون 2022 کو ہونی تھی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف وقار آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے الیکشن شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے 17 اضلاع میں پولنگ 9 جون 2022 کو ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے پاکستان تحریک انصاف کے 133 اراکین کے استعفے قبول کر لیے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 4 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے اجتماعی استعفے منظور ہونے پر ملک میں فوری عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے پاکستان تحریک انصاف کے 133 اراکین کے استعفے قبول کر لیے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیسکو کے ماہ سیام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے۔ فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ کاروبار کا پہیہ جام، تاجر برادری تل ملا اٹھی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شدید گرمی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ فیسکو کے رمضان المبارک میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے محض دعوے ہی رہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں بغیر بجلی کے کاروبار کرنا مشکل ہے۔ خاص کر بجلی کا ایشو آیا ہے، لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے 3-4 سال کے بعد۔ ہم یہ نئی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مکمل طور پر قابو پایا جائے۔ رمضان میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلے موسم بہت گرم ہے، پھر یہ اتنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے جو ہیں تاجر وہ بھی پریشان ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ روزے کی حالت میں بجلی کے بغیر دکان میں بیٹھنا محال ہو چکا ہے۔ صبح سے دکان کھولی اور بجلی صبح سے ہی بند ہے۔ فیسکو حکام ہوش کے ناخن لیں۔ سے لائٹ آف ہے اور غیر اعلانیہ طور پہ لائٹ بند کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں روزے رکھ کے کام کرنا لائٹ کے بغیر بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پہ قابو پایا جائے، جو بالکل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ تاجروں کی جانب سے فیسکو حکام سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ کاروبار کا پہیہ چل سکے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین کے لیے اہم خبر، نیپرا اتھارٹی کا جاری لوڈ شیڈنگ کا سخت نوٹس۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ پاور پلانٹس کی بندش کی وجہ سے ہے۔ ہوئی نیپرا اتھارٹی نے بند پاور پلانٹس کے سربراہان کو کل نیپرا ہیڈ کوارٹرز میں طلب کر لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی صارفین کے لیے اہم خبر، نیپرا اتھارٹی کا جاری لوڈ شیڈنگ کا سخت نوٹس۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ پاور پلانٹس کی بندش کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نیپرا اتھارٹی نے بند پاور پلانٹس کے سربراہان کو کل نیپرا ہیڈ کوارٹرز میں طلب کر لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بجلی صارفین کے لیے اہم خبر۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل نیپرا خبر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے معاملہ پر جو ہے وہ سخت نوٹس دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی بہت شکریہ اویس علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ سوئی گیس کم پریشر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نئی پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ 133 ملین روپے لاگت آئے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مندری روڈ سے ملحقہ ڈی ٹائپ، علامہ اقبال کالونی، ذوالفقار کالونی، سہیل آباد، محمد علی ٹاؤن، برکت پورہ، دستگیر پورہ، آبادی فتح دین، آبادی وزیر خان سمیت دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ بوسیدہ پائپ لائنوں سے لیکیج کے خاتمے اور سوئی گیس کے کم پریشر کی شکایات کے ازالے کے لیے ڈی ٹائپ چوک سے روشن والی جھال تک 5 کلومیٹر سے لمبی نئی گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ گیس حکام کے مطابق میونسپل کارپوریشن سے این او سی ملنے کے بعد منصوبے پر فوری کام شروع کر دیا جائے گا، جس پر 133 ملین روپے لاگت آئے گی اور اس پروجیکٹ کو 6 مہینوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ شہریوں نے نئی گیس پائپ لائن کے منصوبے کو خوش آئند قرار دیا۔
ਭਾਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੋ ਬਿਜਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ तो मुल्क और कौम के वास्ते अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। SNGPL हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन तब्दील होने से गैस प्रेशर में बेहतरी आएगी और मौसम सरमा में सारिफीन को कम प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तहसील पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर इजाज अब्दुल करीम और महकमा खुराक की मुश्तरका कार्रवाई हुई है। चिराग फ्लोर मिल्स पर छापा मारा गया। मुबैना तौर पर गैर कानूनी जखीरा की गई करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम बरामद कर ली गई है। फ्लोर मिल्स का लाइसेंस मनसूख करने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर इजाज अब्दुल करीम ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजिर अली गोहर और महकमा खुराक के दीगर अफसरान के हमरा चिराग फ्लोर मिल्स पर छापा मारा। महकमा खुराक के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर नाजिर अली गोहर का कहना है कि मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर मिल्स में गंदुम जखीरा की गई थी। 24,000 गंदुम के थैले तहवील में लेकर महकमा खुराक के गोदामों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है। जबकि चिराग फ्लोर मिल्स के कोटा 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और मिल्स इंतजामिया को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में गंदुम खरीदारी मुहिम का अमल तेज हो गया है। बारदाना की वसूली के बाद काश्तकारों ने खरीदारी मराकज में अपनी गंदुम पहुंचाना शुरू कर दी है। गंदुम से भरी ट्रॉलियों की कतारें लग गईं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजिर अली गोहर का खरीदारी मराकज का दौरा। आप इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी मुहिम 2022-23 के दौरान बारदाने की तकसीम के बाद अब गंदम की खरीदारी का अमल भी शुरू हो गया है। टोबा टैक्सिंग में 7 खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं जहां पर काश्तकार अपनी गंदम जो है वो लेकर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर नाजिर अली गौहर की जानिब से मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं वहाँ का दौरा किया गया, इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया। उन्हीं से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइए कि अगर 7 सेंटर बनाए गए हैं, अभी तक की आपकी क्या डेवलपमेंट है, कितना बारदाना दे चुके हैं, कितनी गंदम खरीद चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक तकरीबन 2 लाख बोरी बारदाने 100 kg हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है जी। और ख़रीदारी हमारी जो है वो हमने इस वक्त तक 17,000 तक तकरीबन हमने बोरी ख़रीद ली है। और हमारी परसेंटेज जो ख़रीदारी है चूँकि कल से शुरू की थी 1.58 है जी। और बारदाना हमारा कल तक था 27.21। और इंशाल्लाह हम और मज़ीद मेहनत करेंगे और ज़्यादा आगे जाएंगे। सर आमतौर पर देखा गया है कि जब सेंटर्स में आने वाले जो काश्तकार होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामात के हवाले से भी आपने क्या हिदायत जारी की हैं? इंतजामात के हवाले से आपने शजी खुद भी महसूस किया होगा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात ही अच्छे हैं। मेरा सबसे पहले फोकस भी यही था कि सेंटरों को खूबसूरत बनाया जाए, इंतजामात ठीक हों। आज जो रोज़े रखते हैं उनको तो फिर ठीक है, मजबूरी है। जो मज़दूर हैं वो बेचारे रोज़ा नहीं रख सकते, उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम हो, कुर्सियों को आने वाले ज़िम्मेदारों के लिए और दूसरे जो लोग हैं आरती वगैरह वो आते हैं उनके लिए शामियाना बैठने की अच्छी जगह हो। हमने इंशाअल्लाह आज तमाम तर कोशिश की है कि इनको सुकून और सहूलत फराहम की जाए। नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में ज़रूरी ज़मीनों का रिकॉर्ड अब होगा ऑनलाइन। महकमा माल ने ज़िला में 10% मौज़ात का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लिया। रिकॉर्ड मुरतब होने से ज़िला में काश्त की गई फसलों की मालूमात बर वक्त हासिल हो सकेगी। टोबा टैक्सिंग में ज़मीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा माल ने ज़िला में 10% मौज़ात का रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लिया है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से प्याज की काश्त में इजाफे के लिए काश्तकारों को अहम हदायत दी गई हैं। मंजूरशुदा इकसाम की काश्त की हिदायत कर दी गई हैं। 30 अप्रैल काश्त मुकम्मल करने से बेहतर हासिल करना नामुमकिन होगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें हुकूमत पंजाब की जानब से कपास की काश्त बढ़ाने के हवाले से अहम फैसला किया गया और इस सिलसिले में किसानों को हिदायत भी दी गई हैं कि वो सर्टिफाइड बीज लगाएं, सिर्फ मंजूर शुदा इकसाम लगाएं ताकि इसकी पैदावार बेहतर बनाई जा सके। और इस सिलसिले में कहा गया है कि 30 अप्रैल तक ज़्यादा से ज़्यादा काश्त को यकीनी बनाया जाए ताकि फसल बेहतर हो सके और जो इसकी पैदावार है वो भी बेहतर बनाई जा सके। और इस सिलसिले में कहा गया है कि 17,000 तक पौधे फी एकड़ लगाए जाएँ। अगर ताख़ीर होती है तो इन पौधों की तादाद
बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पर किसान अगर सर्टिफाइड बीज लगाते हैं तो इसका यकीनन फ़ायदा भी होगा और इसकी जो पैदावार कपास की बेहतर होगी, क्योंकि हुकूमत पंजाब चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगे और उन खेतों पर लगे और उसका जो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा तो फिर फार्मर्स जो है वो अगले सालों में भी लगाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सर्टिफाइड बीज और मंजूर शुदा अक़साम ही लगाई जाएँ ताकि फार्मर्स को नुकसान से बचाएं। अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। तो बताएं कि महकमा तालीम ने 2017 में भर्ती 292 एजुकेटर्स को नौकरियों पर मुस्तकिल कर दिया है। असातिज़ा के कागजात की तस्दीक के बाद डीओ मेल एलिमेंट्री ने रेगुलराइजेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से एजुकेटर्स को 3 साल सर्विस मुकम्मल करने पर मुस्तकिल करने का ऐलान किया गया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि महकमा तालीम ने 2017 में भर्ती 292 एजुकेटर्स को नौकरियों पर मुस्तकिल कर दिया है। असातिज़ा के कागजात की तस्दीक के बाद डीओ मेल एलिमेंट्री ने रेगुलराइजेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से एजुकेटर्स को 3 साल सर्विस मुकम्मल करने पर मुस्तकिल करने का ऐलान किया गया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि महकमा तालीम ने 2017 में भर्ती 292 एजुकेटर्स को नौकरियों पर मुस्तकिल कर दिया है। यहां आपको बताएं कि चेक नंबर 224 में गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में HVE सिस्टम की अलग से तनसीब का फैसला। अस्पताल की तामीर नौ का काम जारी है। पहले फेज में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से 1 अरब 31 करोड़ 19 लाख की मंजूरी दी गई है। HVAC सिस्टम की तब्दीली के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद का चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग को स्कीम की मरहला वार तकसीम और फंड्स जारी करेगा। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के इलाका चक नंबर 224 में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के हिस्सा डोम की तामीर और मरम्मत के हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानब से चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत फेज़ 2 में हॉस्पिटल की HVAC सिस्टम की तामीर 9 के हवाले से ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से हॉस्पिटल के लिए 2 अरब से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी थी और पहले हिस्से में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानब से 1 अरब 34 करोड़ रुपये के फंड जारी किए गए और महकमा बिल्डिंग की जानब से अभी हिस्सा जो रिमेनिंग पार्ट था उसकी तमीर 9 के हवाले से चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत बेयक वक्त जो है वो तामीर तरक्की का काम शुरू नहीं किया जा सकता, लिहाजा महकमा बिल्डिंग जो है वो किसी भी कंसल्टेंट कंपनी से जो है वो सबसे पहले हॉस्पिटल में HVAC सिस्टम की तमीर 9 का काम मुकम्मल करेगा और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल की जो हिस्सा डोम की तमीर 9 का वो काम सर अंजाम देगा। हॉस्पिटल के लिए अभी तक 1 अरब 34 करोड़ के जो है फंड जारी किए गए हैं। महकमा बिल्डिंग की जानब से आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और फलाही तंजीम के ताउन से बच्चों पर तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर मुशावरती सेशन हुआ। तशद्दुद के वजूहात पर गुफ्तगू, शुरका ने तशद्दुद की रोकथाम पर मीडिया के किरदार पर अपनी अपनी आरा दी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और सर्च फॉर जस्टिस की जानिब से आज एक मुशावरती नशिस्त रखी गई जिसमें मीडिया के किरदार और इसमें मजीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है और इसके साथ साथ बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद है या इस तरह के वाक़यात जो हैं उनको रोकने के लिए किस तरह इस हवाले से मुख्तलिफ रिसोर्स पर्सन ने अपनी अपनी आरा दी। हमारे साथ इस वक्त इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या समझते हैं मीडिया का किरदार किस हद तक अहम है बच्चों के खिलाफ जो तशद्दुद है उसको रोकने में? मीडिया का किरदार 2 लेवल्स पर बहुत अहम है। एक तो यह है कि मीडिया जो है वो अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी असाइनमेंट्स के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए अवामुन नास के अंदर शऊर और बेदारी पैदा कर सकता है ताकि बच्चों के हवाले से जो है वो सोसाइटी ज़्यादा हसास हो और बच्चों को तशद्दुद की हर तरह की शक्ल से बचाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा और हमारी कम्युनिटीज़ अपने अपने तौर पर अपना किरदार अदा कर सके। दूसरा जो अहम पिलर है वो ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत ने मुख्तलिफ तरह के कवानीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतारफ़ करवाए हुए हैं। चाइल्ड लेबर के हवाले से कानून, कम उम्री में शादियों को रोकने के हवाले से कानून, कॉर्पोरल पनिशमेंट की रोकथाम के लिए जो है वो हुक्मनामे जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिनसी तशद्दुद से बचाव के लिए और जिनसी तशद्दुद के निशाना बनने की सूरत में मुर्तकब अफराद के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ कवानीन के तहत। तो मीडिया उन अफराद और उन इदारों के एहतसाब का अमल भी कर सकता है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने कवानीन को नाफिज करने का जो है वो बंदोबस्त करना है। सर एक और बात बताइएगा, आप नहीं समझते हैं कि जो मीडिया कंटेंट है वो मूवीज़ हों, वो कार्टून्स हों, वो गेम्स हों, उसके अंदर जो है वो तशद्दुद और वायलेंस जो है उसका कंटेंट जो है उसको फिल्टर करने की बड़ी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। ये उसकी
بچوں کے لیے آ رہا ہے یا میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے اس کے فلو کے اوپر نظر رکھے, اور اگر اس میں ان اپروپریٹ ایسا کوئی کانٹینٹ پایا جاتا ہے جو بچوں کو وائلنٹ کرنے میں, بچوں کو جو غیر اخلاقی مواد ہے اس کی طرف ایکسپوز کرنے کی طرف, اگر وہ بہت شکریہ رمضان مرزا, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.